Hey everyone, this is Suhana Shoaib, and today in this video I'm going to clear all your doubts regarding to internship, because many of my junior keep asking about कि मैम internship कैसे हॉस्पिटल से करे, प्राइवेट से करे, गवर्नमेंट से करे, which one is better and how to approach a hospital, what is the internship procedures, और अपने आप को काउंसिल से कैसे रजिस्टर करे if we wants to do internship in Delhi only. And if you are not a resident of Delhi, हमारा दिल्ली का कोई डोमिसाइल नहीं है, but we wants to do the internship from Delhi, तो what is the procedure for that, is we are able to do it or not. So ये जितने भी आपके डाउट्स हैं, हॉस्पिटल को कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, आपका इंटर्नशिप CV में क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वाइवा इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज मेनी ऑफ द हॉस्पिटल्स आर कंडक्टेड देयर ओन पर्सनल रिटन एग्जामिनेशन फॉर योर सिलेक्शन इन द फॉर देयर इंटर्नशिप. सो आपके ये सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगी, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. एंड इसके बाद आपको आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा. यू आर टोटली क्लियर अबाउट योर डिसीजन, योर गोल, कि आपको किस हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करना है, कैसे करना है और कब प्रोसीड करना है. Now the question arises, why internship is so important to consider, because many students thinks it is just a formality to complete your degree. But trust me, if you are doing your internship from a good hospital with the attitude of learning, it will transform you from a student to a confident clinician, because during this phase you will learn the clinical exposure, you will learn patient dealing, patient handling, clinical reasoning, you are able to communicate with doctors, patients, patient attendants, you will learn the hierarchy of the hospitals, documentation, ICU rehab, critical care, and you will learn the different areas of hospital, the ortho, neuro, cardio, pulmonary, everything you will learn during this phase is going to shape in your future and it polish your skill from inside out. So please don't think कि कहीं से भी कर लेंगे internship, just do from a random hospital because your friend is doing from there. No, choose wisely your hospital, because it is going to shape your future and it's going to change your thought process about your degree, about your future. Now the question arises, how to shortlist a hospital. So let's talk about the most important thing to selecting a hospital. What are the points you need to be considered? You need to be focused while selecting a hospital. So the very important thing is patient flow. You have to make sure कि जिस भी हॉस्पिटल को आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें IPD OPD का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पेशेंट, मोर नंबर ऑफ केसेस एंड द मोर यू लर्न. सो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होने चाहिए. ऐसे किसी रैंडम हॉस्पिटल में नहीं जाना है जहाँ पे पेशेंट ही नहीं है, तो आप सीखेंगे कैसे, ठीक है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डिपार्टमेंटल एक्सपोजर. मेक श्योर करना है कि जो आप हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हैं हैविंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, हैविंग डिफरेंट न्यूरो रिहैब, ऑर्थो रिहैब, स्पोर्ट्स रिहैब, cardiopulmonary, everything should be like departmental wise. You get the exposure of neonatal and pediatric rehabilitation, pediatric rehabilitation. You need to be focused on ऐसा hospital select करिए that you get the opportunity to learn the transplant patient rehab, to learn the bone marrow transplant patient rehab, how to rehab a cancer patient, because these are not available everywhere. So you have to make sure, because many students I see that many of my batchmates also have completing their internship without seeing a single cancer case, without seeing a single bone marrow transplant case, without touching a neonatal. They are completing their internship. So this is the difference between the departmental exposure is necessary or whether it is not. Next important point is the teaching environment. Exactly. While selecting a hospital, just reach out to that one senior जिसने वहाँ से internship की है, and just ask them a single question. Is the hospital provide us the teaching environment? मतलब वहाँ पर जो faculty members हैं, जो seniors हैं, they have the attitude to teach you instead of just do it like unknowingly. तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द रेपुटेशन, बिकॉज द हॉस्पिटल हैविंग स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, आपका जो हॉस्पिटल है, जो आपका कॉलेज का क्राइटेरिया है, लाइक 200 बेडेड होना चाहिए एटलीस्ट, 300 बेडेड, एवरी कॉलेज हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज. तो उन क्राइटेरियाज में स्टैंड आउट करने के साथ साथ पर्सनल लेवल पर, अपार्ट फ्रॉम द मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ योर कॉलेज, अलग से द हॉस्पिटल हैज़ अ गुड रेपुटेशन और नॉट. ठीक है, एंड उसका एग्रीडेशन अच्छा है या नहीं है, NABH या JCI से वो एग्रीडेट होना चाहिए, वो कितना पुराना है, कितना नया है, और अगर नया भी है तो कितना रेप्यूटेड है, कितना एडवांस है. ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत हेल्प करती है. एंड आपके अगर आपका यू आर सीकिंग फॉर लाइक
कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ में एप्लीकेशंस देने हैं, तो वहाँ के लिए भी दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम होम। यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग ऑल्सो। कोशिश करो कि आपका जो नियर बाय सबसे रेप्यूटेड, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, यू आर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, तो आप तो ट्रैवलिंग में ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो फिर आप जो प्रैक्टिकली चीज़ें देख के आए हो उसे थ्योरेटिकली को रिलेट कब करोगे, उसको पढ़ोगे कब, सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी हैव टू मेक असेसमेंट ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप, तो हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, केस स्टडीज़ बनानी पड़ती है, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती है। तो इन सब के लिए भी ना आपके पास टाइम होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू अ 2 day जॉब। ये लंबा चलने वाला है, और क्योंकि आपको इसमें मेंटली या फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होना है, सो ट्राई करो कि बहुत जो सबसे नियर बाय बेस्ट है उसी को आप अप्रोच करो, ठीक है। तो डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटली मेक यू फिट फिजिकली एंड मेंटली ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप फेज, तो उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सको, ठीक है, फॉर स्टडी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, द इंटर्नशिप स्ट्रक्चर, क्योंकि मैनी जो हॉस्पिटल्स होते हैं दोज आर टेकिंग द इंटर्नशिप इंटर्न्स फॉर लर्निंग पर्पस, है ना। वो इंटर्न्स को लेते हैं क्योंकि इंटर्नशिप एक क्राइटेरिया के अंदर आता है, वो उनको लेते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें पॉलिश करते हैं। एंड सम हॉस्पिटल जस्ट नीड a subject for their electrotherapy and their exercise supervision. So make sure करो कि आपका जो हॉस्पिटल है उसका इंटर्नशिप स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको इंटर्नशिप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करनी चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल से करनी चाहिए। आई हैव एक्सपोजर ऑफ बोथ, क्योंकि मैंने अपने 3rd ईयर 4th ईयर में बहुत सारी क्लिनिकल पोस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की थी, और मैंने अपनी इंटर्नशिप प्राइवेट हॉस्पिटल से की है। सो आई हैव एक्सपोजर ऑफ बोथ, और मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पेशेंट एक्सपोजर बहुत मिलेगा, लाइनें लगी होती हैं सुबह से, तो यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट, और बहुत जल्दी आप अपना कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे बूस्ट कर लेंगे, क्लिनिकल कॉन्फिडेंस, बिकॉज जो वहाँ पे फैकल्टी होगी ना, दैट इज़ टोटली रिलाई ऑन यू। बिल्कुल इंटर्न्स पे रिलाई कर देते हैं, वो इंटर्न्स पे छोड़ देते हैं, एंड द इंटर्न्स हैज़ टू मेंटेन मैनेज एवरीथिंग। तो वर्कलोड बहुत होगा, आप बिल्कुल ओवरवर्क फील करेंगे। एंड आप खुद से अगर एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सीखना चाहते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो चीज़ें सीख लेंगे। आप खुद से, आप जितने अप्रोचेज आपको लगाने हैं, रूट्स, वो बात, जो जो चीज़ें करनी है आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो वन इज़ गोइंग टू जज यू एंड नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फॉर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। वो आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, आपके ऊपर रिलाई कर देते हैं। और वहाँ पर का मतलब नुकसान ये है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट knowing the things properly, तो वो कभी आपकी ठीक भी नहीं होगी। लाइक इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज इन अ रॉन्ग वे, देर इज़ नो वन जो आपको गाइड करे, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ परफॉर्मिंग दैट एक्सरसाइज, उसे ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। वो चीज़ आप कभी सीखेंगे ही नहीं, और वही पैटर्न आपका रह जाएगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि करेक्शन नहीं होगी। नो इंडिविजुअल गाइडेंस, देर इज़ नो वन हु इज़ गोइंग टू टीच यू और इंटरेस्टेड टू टीच यू। बहुत ही रेयर कुछ जेम्स होते हैं जो मुझे भी मिले थे, जो सिखाने की वहाँ पर कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि बच्चा सही परफॉर्म करे। लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट डूइंग योर वर्क, ओवर वर्क, एंड वहाँ पर कोई फॉलो अप नहीं होगा, क्योंकि दे डोंट वांट टू इंक्रीज देयर वर्कलोड। वहाँ पे फॉलो अप नहीं हो रहा। पेशेंट प्रॉपरली 1 महीने का रिहैब उसको चाहिए, उसको 15 दिन का रिहैब एटलीस्ट चाहिए, नहीं होता। वो पेशेंट एक बार आपके पास आएगा विद द रेफरेंस कि कंसल्टेंट ने भेजा है, ऑर्थोपेडिशियन ने भेजा है, एंड दे जस्ट केम एंड टेक अ स्लिप एंड जो भी है उसको एक्सरसाइज सिखा दो एंड दे विल गो, एंड दोबारा आप उस पेशेंट से फॉलोअप के लिए मिलेंगे भी नहीं। तो यू आर नॉट गोइंग टू जज ना कि आपके प्रोटोकॉल ने उनको कितना हेल्प किया, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ नहीं सीखेंगे। बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगर आप थ्योरेटिकली अच्छे हैं, आपको पता है व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, तो आप एक्सपेरिमेंट्स करके चीज़ें बहुत सीख सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, तो वो आपका ज़ीरो ही रह जाएगा, वो आप ये अपने ही पैटर्न में आपका वो डेवलप हो जाएगा और वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी बैड थिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द लर्निंग परस्पेक्टिव। लर्निंग का वहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है। तो इफ़ यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक बार डिपार्टमेंट में विजिट ज़रूर करना है बिफोर द प्रोसेस। एक बार आप पूरा डिपार्टमेंट घूम के देखिए। दे डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी मोडालिटीज़, टेक्नोलॉजीज़, एडवांसमेंट, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंस्टॉल नहीं होती हैं। बहुत रेयर कुछ हॉस्पिटल्स में हैं। सपोज स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है दिल्ली में, उसमें आपको बहुत एडवांस मोडालिटीज़ दिख जाएंगी। ऐसी मोडालिटीज़, मशीन्स वहाँ पे अवेलेबल है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो इंडिया में कहीं और इंस्टॉल नहीं हुई अब तक।
लेकिन द पॉइंट इज दैट इज़ अ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। तो वहाँ पर अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको सिर्फ ACL, PCL, स्पोर्ट्स इंजरीज, मेनिस्कस टियर यही रह जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट कार्डियोपल्मोनरी, नियोनेटल, न्यूरो, एनीथिंग रेदर देन दोज। तो सिर्फ एक ही फील्ड में अगर आपको, या इफ़ यू वांट टू मास्टर्स इन स्पोर्ट्स, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर डूइंग योर इंटर्नशिप, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको स्पोर्ट्स ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो एक चीज़ ये है। दूसरा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका, कुछ हॉस्पिटल्स तो बहुत रेप्यूटेड होते हैं, जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल है, तो दीज आर गिविंग यू अ गुड एक्सपोजर, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, RML, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो आप ऐसे हॉस्पिटल से अगर आप कर रहे हैं, लेडी हार्डिंग, तो आप बहुत अच्छा एक्सपोजर लेंगे। दिस आर द हॉस्पिटल जो आपके सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को मीट करता है, स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो दीज आर द हॉस्पिटल विच इज़ डायरेक्टली कम्पीट विद द प्राइवेट वन। तो ऐसे हॉस्पिटल से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक एवरेज सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप कुछ नहीं सीखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट वन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सेम चीज़ है। बेस्ट टॉप मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से अगर आप करते हैं, जो कि दिल्ली NCR के अंदर बहुत सारे हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, यू विल लर्न एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यू विल लर्न प्रोफेशनल केयर, यू विल लर्न कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ सीखेंगे। एंड यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल कभी नहीं चाहते कि उनके पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो या उनका पेशेंट बिना ठीक हुए वहाँ से डिस्चार्ज हो जाए। तो they put all their efforts to treat that patient। बहुत ही structured rehab protocol बनाते हैं, वो बहुत ही ध्यान से patient dealing करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे clinical exposure मिलेगा, modalities, advancement, robotics, सारी चीज़ों का exposure आपको private hospitals में अच्छा रहेगा, ठीक है। और learning opportunities बहुत ज़्यादा रहेंगी, because they have number of staffs, they have the things which is manageable, structured, so you have the opportunity to learn, grow with them। अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइक सपोज अगर आपको बैचलर्स के बाद मास्टर्स नहीं करनी है, यू वांट टू डू जॉब फॉर ईयर्स और जो भी है, या फिर आपको यहीं पे अपनी पढ़ाई स्विच कर देनी है, जॉब करना है और मास्टर्स नहीं करना, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी गो फॉर अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और वो भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इंटर्नशिप देयर, यू आर बिल्ड अ रैपो ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप फेज। उन्हें पता चल जाता है आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कैसे वर्क हैंडल कर रहे हैं, तो दे डायरेक्टली गिव यू द प्लेसमेंट लेटर। एंड इफ दे डोंट हैव वैकेंसी राइट नाउ, तो बाद में जब भी उनको कभी वैकेंसी होगी उनकी, और यू आर रीच आउट टू देम, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर, यू हैव अ प्लस पॉइंट। जितने भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट होंगे उनमें से आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा कि यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो वहाँ पर का क्या वर्क इन्वायरमेंट है, कैसा एक्सपोजर है, कैसा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, सारी चीज़ें आपको पता है, यू आर यूज टू इट, तो वो आपको ज़्यादा चांसेस हैं टू सेलेक्ट फॉर दैट जॉब। तो इस पर्पज़ से प्राइवेट इज़ बेटर, बिकॉज गवर्नमेंट में आप कितना अपना 100% भी देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू फॉर द जॉब, दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू ना, क्योंकि वो उसका तो हायरिंग प्रोसीजर ही गवर्नमेंट वैकेंसीज एंड एग्जाम एंड ऑल है, तो वो तो लाखों लोग देंगे, उनमें से आप भी एक कैंडिडेट होंगे। तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द एग्जाम वगैरह एंड वैकेंसी, बट प्राइवेट में यू कैन डायरेक्टली गेट हायर्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जिन्हें दिल्ली से इंटर्नशिप करनी है उनका क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। फर्स्ट हम इसमें स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं अलग अलग। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिनका कॉलेज भी दिल्ली में है और जो दिल्ली में ही रहते हैं, वो तो इजीली दिल्ली से इंटर्नशिप कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, बल्कि आपका कॉलेज भी आपको हेल्प करता है। सपोज जामिया हमदर्द है, दे डायरेक्टली हेल्प देयर स्टूडेंट्स टू फॉर द काउंसिल रजिस्ट्रेशन, वही सारा प्रोसेस करते हैं, स्टूडेंट्स को तो बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। नाउ द पॉइंट इज़, आपका कॉलेज नहीं भी हेल्प कर रहा है फिर भी द प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ। आपको सिर्फ DCPT की वेबसाइट पे जाना है, दे हैव अ मेल, उसमें आपको मेल करना है कि यू वांट काउंसिल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर योर इंटर्नशिप। फिर वो आपसे बोलते हैं कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए कि आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर आप मेल करते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यू हैव दिल्ली का डोमिसाइल, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, तो बहुत स्मूथ वो प्रोसेस होता है। तो आपका वहाँ पर तो ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इन्हें साइड कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो रेसिडेंट्स तो दिल्ली में है, रहते दिल्ली में है, लेकिन उनका कॉलेज दिल्ली NCR में कहीं है, लाइक गुड़गांव में है, नोएडा में है, फरीदाबाद में। सो दोज स्टूडेंट आर ऑल्सो डूइंग देयर इंटर्नशिप फ्रॉम दिल्ली बहुत ईजिली, बिकॉज वो रेसिडेंसी दिल्ली की है उनकी, ठीक है। तो बस उनको भी सेम प्रोसेस से होके गुजरना है। दे हैव दिल्ली का डोमिसाइल, दिल्ली का आइडेंटिटी प्रूफ, दिल्ली का बर्थ, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी जो बहुत इजीली अपना काउंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं टेक द एग्जांपल ऑफ थर्ड कैटेगरी,
ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास दिल्ली की रेसिडेंसी भी नहीं है और जिनका कॉलेज भी दिल्ली में नहीं है, ठीक है। अब क्या ऐसे स्टूडेंट्स भी दिल्ली से इंटर्नशिप कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ बिग येस, कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि सपोज लेट्स टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। अब स्टूडेंट हु इज़ लिविंग इन मुरादाबाद, their college is also situated in Moradabad. Let's take example of TMU here, because one of my friend is doing internship with me in Delhi and she studied from TMU. तो मैं उसका example देके आपको समझाती हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू हैव योर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है, यू केम टू दिल्ली, यू आर डूइंग गिविंग योर इंटरव्यू इन दिल्ली हॉस्पिटल, यू गेट सेलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू बी टेक अ रूम। अब आप ऑब्वियसली बात है मुरादाबाद से तो दिल्ली अप डाउन नहीं करेंगे, आप रहेंगे दिल्ली में कहीं नियर बाय हॉस्पिटल के, तो जहाँ भी आपको रहना है वहाँ पर आप अपना रूम रेंट ले लीजिए एंड वहाँ का रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए, वहाँ से आप अपना डोमिसाइल बना लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका सारी चीज़ें सेम रहेगी, देन जस्ट मेल DCPTOT काउंसिल, उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो फॉरवर्ड करने कहते हैं उन्हें फॉरवर्ड करो, दे विल मेल यू बैक। अब DCPT का क्या प्रोसेस है उस पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज द वीडियो बिकम वेरी लेंथी। तो मतलब द पॉइंट इज़ कि वो स्टूडेंट जो दिल्ली में नहीं रहते हैं और जिनका जो कॉलेज है वो भी दिल्ली में सिचुएटेड नहीं है, दो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डू देयर इंटर्नशिप फ्रॉम दिल्ली इफ़ दे वांट टू डू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट आस्क अबाउट कि हम अपने CV में क्या क्या चीज़ें मेंशन करें, हाउ कैन वी मेक आवर CV इम्प्रेसिव, कि जो फर्स्ट फेज़ है CV ही देख के हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे। तो द पॉइंट इज़ कि आपको अपना CV बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही सिंपल रखना है, ठीक है। ट्राई करो कि CV में जितनी चीज़ें आपके पास है, जो भी चीज़ें आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं कुछ रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें ऐड ऑन करो, बस बहुत ही प्रिसाइजली करो, ठीक है। दे डोंट सीकिंग फॉर कि आपके पास मल्टीपल वर्कशॉप्स आपने किया, मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस किए हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। अपनी चीज़ें, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्लियर रखो, अपने CGPA परसेंटेज मेंशन करो, और इफ़ यू आर अ रैंक होल्डर प्लीज़ मेंशन कि आप रैंक होल्डर हैं या फिर आपने इतना CGPA गेन किया है, ये सारी चीज़ें मेंशन करो। अपना जो पर्पस है, ठीक है, वो वहाँ पे क्लियर लिखो कि यू आर सीकिंग फॉर इंटर्नशिप इन अ गुड रेप्यूटेड हॉस्पिटल और अ नियर बाय हॉस्पिटल, सो यू आर सीकिंग whatever your wants, mention these things in starting, जो कि हमारा CV का इंट्रो होता है। उसके बाद अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो पूरे लिखो, अपनी क्लिनिकल स्किल्स के बारे में ऐड ऑन करो। अगर आप कोई अलग लैंग्वेज जानते हो हैं तो प्लीज़ मेंशन दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, कि अगर आपको फ्रेंच जर्मन कुछ आती है तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट योर इंटरव्यू क्लियर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत होते हैं, तो दे गेट दिस पॉइंट वेरी इजीली। एंड बी रियल, जो भी चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं, जितने भी आपने क्लिनिकल किए हैं ड्यूरिंग योर बैचलर्स, आपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स किए हैं, वो सारी चीज़ों, उन सारी जगहों की नाम मेंशन करो, आपने कितने कितने टाइम तक पोस्टिंग की है, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, मेंशन इधर डेट वाइज और मंथ वाइज मेंशन करो। और अपने सारे सर्टिफिकेशन आप साथ में कैरी करेंगे while going for the interview. Is that clear? Now the point is interview or written examination. Okay, जो colleges, sorry, जो hospitals आपके written examination लेते हैं उसमें तो आपके basics clear होने चाहिए, ठीक है। वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो इतना जानते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट जिसने अपने 4th ईयर तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो यू मस्ट नो द मायोटोम्स, यू मस्ट नो द डर्माटोम्स, यू मस्ट नो द स्पेशल टेस्टेड कार्डियो न्यूरो रिहैब असेसमेंट्स, ये तो आपको बेसिक है जो आपको पता होने चाहिए, वो इससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ें क्लिनिकल बेस है, रीजनिंग बेस हैं, विच यू आर गोइंग टू लर्न नाउ, तो अब तक जितना आपको आना चाहिए वो सिर्फ उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब है बिल्कुल बेसिक्स, आपको एकदम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको बेसिक्स पूछे जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। अगर आपके वो भी क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है, उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है असेसमेंट। ऑर्थो का असेसमेंट, न्यूरो केसेस का असेसमेंट, कार्डियोपल्मोनरी केसेस का असेसमेंट। अब असेसमेंट वर्ड में ही बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। इसी के अंदर आपकी MMTs आ गई, डर्माटोम, मायोटोम, सेंसरी असेसमेंट, मोटर असेसमेंट, स्पेशल टेस्ट, इसी के अंदर आपका एक्सरे रीडिंग, MRI रीडिंग, इसी के अंदर आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसी के अंदर आपके रेड फ्लैग्स आ गए। तो असेसमेंट के अंदर इट इज़ वेरी वास्ट। तो अगर आपका असेसमेंट पार्ट भी क्लियर है ना,
तो यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू फॉर योर इंटर्नशिप। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आप प्रोफेशनली ड्रेसअप होकर जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। मतलब द पॉइंट इज़ कि नर्वस नहीं होना है, इतना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें कि अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप बता सकें, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास यू हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग ना, पीपल विल सेलेक्ट यू बिकॉज आप पढ़ के आए हैं, यू हैव गुड स्ट्रॉन्ग थ्योरी एंड इफ़ यू नो द थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट आपसे वैसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, वो आप ड्यूरिंग इंटर्नशिप सीखेंगे। बट यू हैव टू मेक देम रियलाइज़, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो चार्म आपके अंदर आना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि यू हैव दैट एटीट्यूड टू लर्न। यू मे डोंट नो एवरीथिंग, किसी को कुछ नहीं आता बिफोर इंटर्नशिप, ये फैक्ट है, बहुत लोगों को कुछ नहीं आता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर भी नहीं लेते, बहुत सारा क्लिनिकल पोस्टिंग भी नहीं करते, दे जस्ट डू जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है कि 1 मंथ का चाहिए सेमेस्टर में, 2 मंथ का चाहिए, वो उतना ही करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2000 कीन लर्नर जो पूरे ही 3rd ईयर 4th ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में जाते रहते हैं एंड उसको करते हैं मैनेज, तो वो डिफरेंस ना दिख जाता है, इंटरव्यूअर को भी दिख जाता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। बट द पॉइंट इज़ कि अब तक जो किया नहीं किया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अब जब आप सामने हैं तो बी प्रेजेंटेबल, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ and trust your destiny, so everything will be fine. And if you want me to explain or elaborate any of these topic like DCPTOT registration का पूरा प्रोसीजर जानना है, या फिर इंटरव्यू के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए, या फिर एनीथिंग इफ़ यू वांट फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट डाउन, हम उस पर सेपरेट वर्क करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।